آج میری شادی تھی اور میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میری ماں نے جانے مجھ سے کیا دشمنی نکالی تھی کہ میرا رشتہ ایک غریب مزدور کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں جس قدر حسین تھی، میرے لیے تو کسی امیر اور خوبصورت شہزادے کا رشتہ آنا چاہیے تھا اور میری شادی اس سے ہونی چاہیے تھی۔ مگر میرے نصیب میں کیا تھا؟ ایک بڑی عمر کا مرد جو غریب بھی تھا۔ میں دلہن بنتے ہوئے دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ میں تیار نہ بھی ہوتی تو سرخ جوڑے میں قیامت ڈھاتی۔ میک اپ اور جیولری نے میرے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پہلو میں جا کر بیٹھی تو سبھی کی ترس بھری نظریں دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں خود کو کہیں غائب کر لوں۔ میرے اور میرے شوہر کا بالکل جوڑ نہیں تھا، اور شادی میں آیا ہر رشتہ دار یہی کہہ رہا تھا کہ زارا کے یعنی میرے نصیب پھوٹ گئے۔ سب میری ماں کو باتیں سنا رہے تھے اور میری ماں ہنس کر سن رہی تھی، اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اماں کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی کی بات سنتی، وہ تو ایک کے بدلے 4 سنا دیتی تھی۔ مگر اس وقت وہ بالکل چپ تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اماں کا کیا مقصد ہے یوں چپ رہنے کو۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ باہر کار کھڑی تھی، شاید وہ کرائے پر لایا تھا۔ مجھے رونا آیا۔ اتنے امیر اور گاڑی والوں کے رشتے میری ماں نے ٹھکرائے اور مجھے اس غریب سے بیاہ دیا۔ میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ایک سنسان جگہ پر جا کر گاڑی خراب ہو گئی۔ میری کون سا لمبی چوڑی بارات تھی، صرف میرا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، اور وہ سب رخصتی سے پہلے جا چکے تھے۔ اس وقت ہم دونوں ہی تھے اور دور دور تک مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس تو کوئی موبائل نہیں تھا، مگر میرے شوہر کے پاس بھی نہیں تھا۔ اسے اس وقت مجھ سے زیادہ گاڑی کی فکر ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، اس کا کرایہ تو میرے دوستوں نے دیا تھا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اس کو ٹھیک کروانے کو دے سکوں، اب کیا کریں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت پر بینڈ ڈالوں اور زور زور سے رونے لگوں۔ شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی گزرے، اور میری تو سڑک پر خوار ہوتے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا وہاں کھڑے کہ ایک گاڑی پاس سے گزری۔ اس میں میرے شوہر کی ہی عمر کا ایک آدمی تھا جو ہمیں دیکھ کر رک گیا اور مدد کی آفر کی۔ میرا شوہر آگے بڑھ گیا اور میں پیچھے۔ میں مسلسل یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ سامنے لگے آئینے سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرد کی نظریں ہر عورت پہچان لیتی ہے۔ میں نے بھی اس کی پیغام دیتی نظریں بھانپ لی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہم اترے تو اس نے میرے شوہر کو اپنا کارڈ اور کچھ پیسے دیے اور کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ مجھے لگا وہ امیر شخص ہے، ہم غریبوں کے ہاں کیسے آئے گا؟ مگر دنگ رہ گئی کہ جب اگلے دن وہ ہمارے گھر بہت ساری چیزیں لے کر آ گیا۔ جانے وہ کون تھا اور کیوں ہماری زندگیوں میں آ گیا تھا؟ جہاں تک مجھے لگتا تھا وہ میری وجہ سے ہی میرے شوہر سے رابطہ بڑھا رہا تھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی کبھی اس طرح کی حرکتیں میں نے کی تھی کہ مردوں کو جال میں پھانس لوں، مگر اس طرح کی زندگی کی بھی میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی جو میں جی رہی تھی۔ میرا مزدور شوہر دن بھر کام کے بعد جتنے پیسے لاتا ہے اس میں بمشکل ہماری دال روٹی پوری ہوتی تھی۔ ایسے میں پھر وہ شخص جس کا نام فیروز تھا وہ ہماری مدد کرتا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا بہت اچھا دوست بن گیا ہے۔ فیروز جب بھی ہمارے گھر آتا اس کی نظر بس مجھ پر ہی رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ میں لینا تو نہیں چاہتی تھی مگر لے لی۔ پھر وہ اکثر ہی بہانے سے مجھے کچھ نہ کچھ دینے لگا۔ وہ سب ضروریات جو میرا شوہر پوری نہیں کر سکتا تھا وہ سب فیروز پوری کرنے لگا۔ مہنگے ملبوسات جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا میں اب وہ پہننے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ میں فیروز سے مانوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا ہی تو شوہر چاہیے تھا جو میری بچپن کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیتا۔ میرا بچپن سسکتے ہوئے اور ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزرا تھا۔ ماں نام کے رشتے نے تو ہمیشہ ہی مجھے تکلیف دی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ میری ماں جو سلوک کرتی تھی وہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ماں ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے خود بھی لگتا تھا کہ میں اس کی سگی بیٹی نہیں بلکہ اس نے مجھے کسی سے گود لیا ہے، لیکن دل جلانے کو یہی حقیقت کافی تھی کہ وہ میری ماں اور میں اس کی بیٹی تھی۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ میری 2 بہنیں اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن، سبھی کا رنگ سانولا تھا، جبکہ میں واحد تھی جو گورا رنگ اور تیکھے نقوش رکھتی تھی۔ میں بچپن سے ہی انتہائی خوبصورت تھی۔
बड़ी बड़ी आंखें और मेरे सुनहरी बाल देखकर सबको यही लगता था कि मैं तो यहाँ की रहने वाली हूं ही नहीं। अगर किसी बेटी की इतनी तारीफें की जाएं तो माँ खुश होती है, लेकिन मेरी माँ न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उससे मेरी तारीफें रास ही नहीं आती थी और ना ही अच्छी लगती थी। जाने माँ मुझसे क्यों खार खाती थी और जलती रहती थी। वो हर वक्त मेरा और दूसरी बहनों का मुवाजना करने में मशगूल रहती थी। अम्मा को शायद जलन इस बात की थी कि मेरी बाकी बहनें इतनी खूबसूरत क्यों नहीं है और मैं क्यों हूँ, क्योंकि उनके हिस्से की भी सारी तवज्जो लोग मुझे देने लग जाते थे और ये बात माँ को कांटे की तरह चुभती थी। मुझे याद है कि एक बार हमारे घर में मेहमान आए थे और उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया था और जाते हुए मुझे पैसे भी दे गए थे। अम्मा को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उनके जाते ही फौरन मुझे पीटने लगी कि मैं मेहमानों के सामने क्यों आई। सिर्फ यही नहीं, अम्मा ने मेरे मुंह पर कालक भी मल दी। मैं रोने लगी तो मुझे रोते देखकर अम्मा हंसने लगी, कहने लगी, देख तेरे चेहरे पर कालक की स्याही कितनी अच्छी लग रही है, यही तेरा नसीब है। उस वक्त मैं छोटी थी, इसीलिए मुझे अम्मा की बातें समझ में नहीं आती। अम्मा मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। फिर अम्मा की देखा देखी मेरी बहनें भी मुझसे जलना शुरू हो गई। कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करता था। इन हालात में मुझे अपने बाप की याद आती, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं था। अम्मा बताती थी कि वो छोटी बहन के पैदा होने के कुछ अरसे के बाद फौत हो गया था। मैं सोचती कि शायद मेरा बाप होता तो मुझे अम्मा के जुल्मों सितम से बचा लेता। माएं भला कब ऐसी होती है। मेरी सहेली की माँ थी जो उस पर जान निछावर करती थी। अपनी बेटी के लिए वो हर हद से गुजर जाने को तैयार रहती थी और उसे बहुत ही प्यार करती थी। ये सब देखकर मैंने एक दिन माँ को कहा कि मुझे भी उसी की माँ की तरह प्यार किया करो। तो अम्मा ने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया और कमरे में बंद कर दिया। अम्मा खुद ही मेरे मुंह पर कालक मलकर मुझे बाहर निकाल देती थी और जब लोग मुझ पर हंसते तो कहती, इसे कालक बहुत पसंद है, इसीलिए खुद ही मुंह पर लगा लेती है। छोटी छोटी ख्वाहिशात को तरसते और माँ का ये रवैया देखते मैं बड़ी हो गई। मेरे जवान होने तक अम्मा बड़ी दोनों बहनों की शादियां कर चुकी थी। बड़ी होकर मुझे शादी का मानी समझ में आया तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई कि मुझे इस बहाने इस दोजख से निकलने का तो मौका मिलेगा। मेरी सहेलियां मेरी शक्लो सूरत देखकर मुझे छेड़ा करती थी कि तुम्हारे लिए तो किसी अमीर से शहजादे का रिश्ता ही आएगा। उनकी बातें सुनकर मैंने भी अपने जहन में सोचना शुरू कर दिया था कि बहुत जल्द मैं किसी अमीर खानदान में जाऊंगी। और ऐसा हुआ भी। खानदान से और खानदान के बाहर से बहुत से अमीर लोगों के रिश्ते मेरे लिए आए, मगर मेरी माँ ने सबको इनकार में जवाब दे दिया। यहाँ तक कि मेरी एक सहेली अपने भाई तक का रिश्ता लेकर मेरे लिए आई। उसका भाई जापान में होता था और वो मुझसे कहने लगी कि शादी के बाद वो तुम्हें भी बाहर ले जाएगा। मैंने अम्मा के हाथ जोड़े कि मेरी शादी मेरी दोस्त के भाई से करवा दे, मगर मैं क्यों भूल रही थी कि बचपन से लेकर अब तक अम्मा ने मेरी कौन सी सुनी है जो अब वो मेरी बात को जरा भी अहमियत देती। अम्मा ने बाकी रिश्तों की तरह इस रिश्ते को भी टाल दिया कि हमें यहाँ पर अपनी बेटी को नहीं ब्याहना। सब लोगों को लगता था कि अम्मा मेरे लिए किसी बहुत ही ऊंचे घर के रिश्ते का ख्वाब देख रही हैं, मगर मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। जैसी जिंदगी मैंने अम्मा के घर गुजारी थी, वो चाहती थी कि मैं आगे जाकर भी वैसी ही जिंदगी गुजारूं और एक एक चीज को तरसूं। इसीलिए तो जब मेरे लिए उस मजदूर का रिश्ता तलाश किया तो सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मैं अपने शौहर के साथ जो जिंदगी गुजार रही थी वैसी जिंदगी गुजारना मेरा हक नहीं था। इसीलिए मैं संजीदगी से फैरोज के बारे में सोचने लगी। उसने मुझे अपने साथ भाग जाने को कहा था। एक तरफ मजदूर शौहर तो दूसरी तरफ से फैरोज जैसा चाहने वाला अमीर शख्स जो मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने पर कातिर था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं था। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी एक अमीर आदमी के साथ गुजारनी है। इसीलिए एक रात को मैंने चुपके से अपना घर छोड़ दिया और फैरोज के साथ गाड़ी में बैठकर अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपने शौहर के नाम एक खत लिख छोड़ा था जिसमें मैंने उसे यही कहा था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझे कभी तलाक नहीं देगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अदालत से खुला ले लूंगी। ये आइडिया भी फैरोज का ही था। मैंने उससे कहा था कि मुझे कहीं और ले जाए।
मगर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और अपनी पहली बीवी से मिलवाऊंगा। कहने लगा कि मेरी पहली बीवी को तुम्हें हर हालत में कबूल करना ही होगा। जैसे ही मैंने फेरोज के साथ उसके महल नुमा घर में कदम रखे तो मैं उसकी बीवी को देखकर अपने होशो हवास पर काबू न रख पाई। फेरोज की पहली बीवी तो मेरी ही सहेली थी, वही सहेली जो अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लाना चाहती थी। मैं उसे देखकर दंग रह गई, तो दूसरी तरफ वो भी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी। वो मुझे कहने लगी कि फेरोज ने मुझे बताया था कि वो किसी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्योंकि मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई इसीलिए मैंने उसे इजाजत दे दी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो तुम ही होगी। उस पल मैं इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही ना पाई। ये अगर इत्तेफाक था तो मुझे ये इत्तेफाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने सोच रखा था कि फेरोज से शादी के बाद उसे मजबूर करूंगी कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, मगर यहाँ तो उसकी पहली बीवी मेरी ही सहेली निकल आई। फेरोज ये जानकर बहुत खुश हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की सहेलियां हैं। हम दोनों सहेलियां गुजरे वक्त की बातें करने लगी। मेरी सहेली फिजा की शादी को फेरोज से हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था। मैं फिजा की शादी पर नहीं गई थी, इसीलिए मैंने उसके शौहर को पहले नहीं देखा था। ये किस्मत के ही अजीब रंग थे जो हम तीनों को करीब ले आई। मैं यहाँ अपने शौहर को छोड़कर आ तो गई थी, मगर मुझे माँ की तरफ से बहुत डर लगा हुआ था। अब तक तो माँ को पता चल गया होता, वो मुझे बगैर कसूर के इतनी सजा देती थी, तो अब जबकि मैंने गलती की थी तो जाने उसका रद्द अमल क्या होता। फेरोज और फिजा मुझे तसल्लियां देते हुए कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम किसके साथ घर से भागी हो और किसके घर में रह रही हो। मैं भी मुतमईन हो गई क्योंकि मैं यही चाहती थी कि किसी को पता ना चले। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फिजा घबरा कर उठी और मुझे कहने लगी कि चलो हम ऊपर छत पर चले जाते हैं, फेरोज के कुछ दोस्त आए होंगे। मैंने हैरान नजरों से उसके बर्ताव को देखा कि अगर दोस्त भी आए तो इसमें इतना डरने या घबराने की क्या जरूरत है। खैर मैं कुछ कहे बगैर चुपचाप उसके साथ छत पर आ गई। मुझे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर फेरोज की दौलत की चकाचौंध ने मुझे वहां बांधे रखा। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए और मेरा किसी से कोई राब्ता ना हुआ। मैं अदालत के जरिए अपने शौहर से खुला लेकर फिर फेरोज से निकाह करना चाहती थी, मगर वो मुझे यही कहता था कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी अदालत जाने का सही वक्त नहीं है। एक दिन वो और फिजा मुझे कहने लगे कि तैयार हो जाओ, तुम घर में बोर होती हो, हम दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं भी तैयार होकर उनके साथ चली गई। वहां फिजा ने सबको यही कहा कि मैं उसकी बहन हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वहां बस 5-6 लोग थे जो सब के सब मर्द थे और सिर्फ हम दोनों ही औरतें थी। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उन सब मर्दों की नजरें मुझे अपने जिस्म के आर पार महसूस हो रही थी। मैं जल्द ही तबीयत की खराबी का बहाना करके बाहर आ गई। फेरोज मेरे पीछे आ गया और मुझे गुस्से से डांटने लगा कि मैं यहाँ पर क्यों चली आई। इस तरह मेहमानों को छोड़कर मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था। मुझे उसके रवैये पर हैरत हो रही थी कि क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो सब मर्द मुझे और फिजा को घूर घूर कर देख रहे थे। उसने ये किस किस्म के दोस्त बनाए हुए थे। माना कि अमीर लोग अय्याश होते हैं, लेकिन ये क्या कि दूसरों की बीवी पर नजर जमा के बैठे रहो। उसी वक्त अंदर से फिजा भी चली आई। वो दोनों एक तरफ जाकर आपस में सरगोशी में बातें करने लगे जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बारे में बात कर रहे हो। फिजा बात करके अंदर चली गई और फेरोज मेरे पास आकर बोला, चलो हम घर चलते हैं, फिजा को ड्राइवर उसकी अम्मी के घर छोड़ आएगा। एकदम से उसके रवैये में इतनी तब्दीली, मैं उसे देख कर रह गई। मेरा शौहर भले गरीब था, लेकिन वो मुझ पर आज तक नहीं चिल्लाया था और अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे खुश करने की कोशिश करता रहता था। यहाँ तक कि मेरी जली कटी बातें भी वो हंस कर बर्दाश्त कर लेता था। जबकि फेरोज का रवैया तब्दील होने लगा था। अगर फिजा का सहारा मुझे ना मिलता तो शायद अब तक मैं लौटकर अपने शौहर के पास वापस जा चुकी होती। फिजा की जिंदगी देखकर मैंने समझौता करने का फैसला कर लिया था। वो भी मेरी तरह गरीब घर से थी, मगर फेरोज से शादी करने के बाद तो वो सर से लेकर पांव तक बदल गई थी। और अब मैं भी तो ऐसा ही चाहती थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। मुझे घर छोड़कर फेरोज फिर किसी से मिलने चला गया। अकेले घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि माँ की तरफ से हो आती हूँ। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि मैं अपने शौहर को छोड़ आई हूँ।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो डांटेंगी और मार लेंगी तो कोई बात नहीं, मगर उस वक्त मेरा अपनी छोटी बहन से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। मैं माँ की तरफ चली आई। मुझे लगता था कि जैसे ही अंदर कदम रखूंगी माँ मुझ पर चिल्लाने लगेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगी कि तुमने आना ही था तो अपने शौहर के साथ आ जाती, अकेली लड़की का यूं मैके आना मायूब समझा जाता है। मैं माँ की बात सुनकर साकत रह गई। वो ऐसे आराम से क्यों बात कर रही थी? क्या उसे नहीं मालूम था कि मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया है? मेरे घर से जाते ही मेरे शौहर को यहाँ आकर हंगामा मचाना चाहिए था, मगर ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि अम्मा मुझे कहने लगी, तेरी सहेली फिजा कुछ दिन पहले आई थी अपने अमीर कबीर देवर का रिश्ता लेकर। वो चाहती थी कि मैं अपनी छोटी बेटी की शादी उसके देवर से कर दूं। तेरी वो सहेली काफी अमीर खानदान में ब्याही गई है। मैं सोच रही हूँ मैं रोशनी की शादी भी वहीं कर दूं, खुश रहेगी वो। ये बात सुनकर मैं उछल पड़ी। अम्मा क्या कह रही थी कि फिजा यहाँ आई थी, मगर उसने तो मुझे नहीं बताया था, और ना ही फेरोज का कोई भाई था। फिर वो अपने किस देवर के लिए यहाँ रिश्ता लेने आई? ये सब क्या चल रहा था? मुझे तो इस बारे में ना फिजा ने कुछ बताया था और ना ही फेरोज ने। क्या वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे शक होने लगा कि जरूर तो कुछ ऐसा है जो नजरों से ओझल है। ये फिजा क्या करने की कोशिश कर रही है? हो सकता है फेरोज को भी इस बारे में इल्म ना हो। मैं कुछ देर ही बस बैठी और फिर फेरोज के घर चली आई ताकि उनसे पूछ सकूं कि ये क्या चल रहा है। अभी मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मैं अपना नाम सुनकर कमरे के बाहर ही रुक गई। फेरोज फिजा पर चिल्ला रहा था, वो तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई बगैर बताए? तुम जानती हो कि उसके यूं जाने से मेरा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं क्लाइंट को लेकर घर आया तो वो घर पर ही नहीं थी। मजबूरन मुझे उस शख्स को उसके सारे पैसे वापस करना पड़े। मैं ये सुनकर चौंक गई कि किसके बारे में बात हो रही है। फिजा भी जवाबन उस पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, घर पर मैं नहीं थी, घर पर तुम उसे लेकर आए थे, तो तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। क्या पता उसे हम पर शक हो गया हो और वो यहाँ से चली गई हो। मैं उन दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई कि ये किस शक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब था कि वाकई कुछ गलत हो रहा था। फेरोज कह रहा था, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वो सहेली बड़ी ही बेवकूफ और लालची है, इसीलिए मैं उसके पीछे लगा, उसके शौहर से दोस्ती की, उस पर इतना पैसा लगाकर उसे यहाँ तक लाया कि डबल ट्रिपल कमाऊंगा, मगर लगता है कि वो फरार हो गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम उसे यहाँ बेचने के लिए लाए हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। तो ये दोनों मियाँ बीवी की साजिश थी। फेरोज को मुझसे कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो अपने गलत मकसद के लिए मुझे घर से भगा कर लाया था। इससे पहले कि मैं वापस मुड़ती मेरा पैर गुलदान से टकरा गया और वो दोनों चौंक कर बाहर निकल आए। मुझे देखकर एक लम्हे को तो वो घबरा गए। मैंने फिजा के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सहेली के साथ ये सब कुछ करते हुए। मैंने सब सुन लिया है। वो कहने लगी कि सुन लिया है तो मैं क्या करूं? हाँ, हमने ये सब किया है। तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मेरी बहुत अरसे से तुम पर नजर थी, इसीलिए तुम्हें सहेली बनाया था। मैं जानती थी कि तुम एक अमीर आदमी से शादी करने की ख्वाहिश रखती हो, इसीलिए मैंने अपने शौहर को तुम्हारी शादी के पहले दिन से ही तुम्हारे पीछे लगा दिया ताकि ये तुम्हें अपने जाल में फंसा कर यहाँ ले आए। हमारा तो काम ही यही है कि खूबसूरत लड़कियों को पैसों के एवज आगे बेच देना। अब तुम्हारा सौदा भी तय हो चुका है। फेरोज, इसे कमरे में बंद करो। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता, जाने कहां से पुलिस आ गई। पुलिस के साथ अम्मा और अपने शौहर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि वो यहाँ कैसे। मेरा शौहर मेरे पास आकर कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे शक था कि तुम्हें फेरोज ने ही बहला फुसलाकर घर से निकलवाया है, मगर ये भी ऐसा गायब हुआ कि मिला ही नहीं। फिर आज तुम अपने मैके गई तो तुम्हारी माँ ने मुझे फौरन फोन किया और तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया। हम पुलिस के साथ तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा कि ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, तो वो बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा जुल्मों से सितम किए। तुम मेरे शौहर की दूसरी बीवी से हो, मगर उस शादी का मेरे सिवा किसी को इल्म नहीं था। मरने से पहले वो तुम्हें मेरी गोद में डाल गया और कसम दे गया कि किसी को मत बताना। मुझे तुमसे नफरत थी कि तुम्हारी हसीन माँ ने मेरे शौहर को छीन लिया, और इसी नफरत और हसद में तुम्हारे साथ बुरा सलूक करती रही।
जानबूझकर तुम्हारी शादी एक गरीब मजदूर से करवाई ताकि तुम सिसकती रहो। मुझे आज एहसास हुआ है कि कुदरत मुझे मेरी गलतियों पर सजा देने जा रही थी, क्योंकि मैं भी अनजाने में अपनी बेटी इसी फिजा को सौंपने जा रही थी। अगर मैं ऐसा कर देती तो आज तुम दोनों को खो चुकी होती। मुझे माफ कर दो। मैंने माँ के हाथ थाम लिए। चाहे उसने मुझे बेटी ना समझा हो, मगर मैंने उसे हमेशा माँ ही समझा था। मेरा शौहर कहने लगा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं, इसीलिए तुम नादानी में फेरोज जैसे आदमी के हत्थे चढ़ गई। तुम तलाक लेना चाहो तो मैं देने को तैयार हूँ। मैं समझ चुकी थी कि अमीर वो है जो दिल का अच्छा है, दौलत तो आनी जानी चीज है। इसीलिए मैंने अपने शौहर से माफी मांगी और उसके साथ रहने को ही तरजीह दी।